हुई तो जब पिछली क्लास 22 नवंबर को हुई थी, उसमें अगले क्लास के लिए वॉलंटियर थी फरत, सुम्बल, शीना और राबिया। ये हैं अभी क्लास में? मैं नाम बोलता हूँ दोबारा। फरत, सुम्बल, शीना and Rabia. Is any one of them present in the class? चलो कोई नहीं, नेवर माइंड। आज की क्लास के लिए कोई वॉलंटियर है? हाँ जी सर, हेलो डॉक्टर किंजा। डॉक्टर किंजा। किंजा। अस्सलाम वालेकुम सर। आप डॉक्टर किंजा हैं? जी पहली वॉलंटियर। चलो फिर आपसे शुरू करता हूँ। तो डॉक्टर किंजा, आप कहाँ से हो? सर, इस्लामाबाद से। गुड। मैंने ये 3 हिस्ट्रीज बनाई हैं। पहले मैं लदर तीनों बोलता हूँ, फिर उसमें से 1, 2, 3 सिलेक्ट कर लेंगे कौन सी पहले करनी। आज का टॉपिक है इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ। तो मैं सोचा कि पॉसिबली ये 3 लाइन हो सकते हैं जिनमें अगर इस तरह का केस आपको हो तो एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट करता है आपसे। पहले केस तो है, लिख लीजिए। एज 25, ग्रेविडा 3, पैरा 2, और अभी she has come to you with 5 months amenorrhea. और अल्ट्रासाउंड पे इंट्रा तो फीटल हार्ट नहीं सुन रहा। और इसकी पिछली 2 पैरा 2 है, वो भी 2 कंसेक्टिव आईयू एफडी इंट्रायूटराइन फीटल डेथ। एक तो ये। दूसरी केस है एज 38, मैरिड फॉर 10 years, प्राइमरी ग्रेविड है और ये आईवीएफ प्रेगनेंसी। She has been under your care with IUGR, लेकिन अब अचानक फीटल हार्ट गायब हो गया। इसकी मैनेजमेंट। नंबर 3 है एज 30, ग्रेविडा 2, पैरा 1, previous section, 1 female alive. अब 36 weeks पे she has reported with loss of fetal movements, और आपको डॉपलर पे फीटल हार्ट सुना ही नहीं दे रहा। ये 3 मैंने अपनी तरफ से डिफरेंट केसेस बनाए हैं। अब आप बताइए, मैं आई गिव चॉइस टू डॉक्टर किंजा। आप 3 में से कौन सा केस करना चाहेंगी, सुनना चाहेंगी या डिस्कस करना चाहेंगी? जी बोलिए डॉक्टर किंजा। सर लास्ट वाला लास्ट वाला चल ले। वैसे आपने नोट किया कि मैं पहले जब भी कोई टॉपिक होता था 10-15 मिनट उसकी बैकग्राउंड आपसे डिस्कस करता था, तो फिर केस चीज होती थी। आज तरह मैंने मॉडल फर्क किया है।
अब ये केंजा इसको डिस्कस करना चाहती है नंबर 3 केस ये है जो एक हम अपने प्रैक्टिस में बहुत फ्रीक्वेंटली देखते हैं कि पेशेंट एज 30 ग्रेविडा 2 पैरा 1 और at 36 weeks of gestation और he was doing well, अचानक fetal heart गायब हो गया और प्रीवियसली पैरा 1 जो है सिजेरियन सेक्शन है, एक बेटी है जो ठीक ठाक है, लेस से कि वो 5 साल पहले पैदा, लास्ट चाइल्ड बर्थ 5 years ago, and that baby is okay. She had no problem during that pregnancy. जी डॉक्टर केंजा बोलिए. Sir, after greeting and introducing myself, I would like to know about some extra information. Good. As my patient is para 1, I would like to know her as she has presented to me with the complaint of loss of fetal movements. So I would like to know, is it a first episode or whether she has also experienced the decreased fetal movements before? And mm, whether she was what is her last menstrual period, and her menstrual cycle was regular, and she was having regular antenatal visits before, and does she have any she was booked in any hospital, whether she has dating scan done and anomaly scan done, it was all right, or it was what about the anomaly scan? And if does I would like to rule out the causes of IUD in mother, in fetus, and related to any placenta. Like for maternal causes, I would like to know that whether she has any history of diabetes, hypertension, any history of SLE, cholestasis, or any history of infections in this pregnancy, or family history of congenital anomalies. And on regarding baby, I would like to know that anomaly scan has done, and whether it was normal or there was not any anomaly was there or not. And then as my patient is at 36 weeks, I would like to know, and any growth scan was done, and growth was corresponding to the dates. And I would like to know about any history of antepartum hemorrhage, or any history of PV bleeding, any history of gush of fluid like pre-prom, and whether she was told that there was cord around neck in any scan, whether she was told or not, and to rule out the cause, to find out the causes for intrauterine fetal demise. And then I would, after gathering this information, I would like to examine the patient, and I would examine the patient for apart from general physical examination, I would like to on per abdominal examination, her symphysio-fundal height, and estimate Likert lie presentation. And apart from after examination, I would like to proceed towards the investigations. I would like to माशाल्लाह, इससे बेहतर हिस्ट्री मैंने कभी नहीं सुनी जो आपने सुनाई है. आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑन दैट. लेकिन एग्जामिनेशन पे थोड़ा सा एब्डोमिनल का एग्जामिनेशन को और डायरेक्ट कीजिए, थोड़ा और डायरेक्ट कीजिए. सर आई वुड जनरल आपने ब्लड प्रेशर खास तौर पर बोल दीजिए, आई लाइक टू रिकॉर्ड अ ब्लड प्रेशर. और फिर फंडल हाइट, तो उसके साथ एक दो लफ्ज बोलिए कि कोई डिस्क्रिपेंसी है कि नहीं है. फंडल हाइट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू, yes sir, corresponding to dates, or is it corresponding to उसके dates? उसके बाद लाइकर बोलिए कि लाइक टू असेस प्रेजेंस लाइकर.
liker presence क्योंकि or अगर decrease liker. हाँ बिल्कुल ठीक, ये बोलिए कि whether there's decreased amount of liker or not. फिर आप कंफर्म नहीं किया आपने कि I would like to confirm absence of fetal heart by Yes, sir. ये Yes, sir. अल्फाज Yes, sir. I would like to confirm the absence of fetal heart. And sir, on the per abdominal examination, and after then I would like to reconfirm, or I would like to take the second opinion by the radiologist, as चलो ठीक हो गया। अब second opinion. से कहिए उससे क्या पूछेंगी रेडियोलॉजी से, सिर्फ यही नहीं, Yes, sir. Radiologist से रेडियोलॉजी से एक तो काम हो गया ना, फीटल हार्ट कंफर्म कर देगा, sir, फिर उसके आप अलावा there are certain ultrasound signs that are present on हाँ scan, बिल्कुल बिल्कुल, अगर like एक दो साइंस का नाम भी बोल दो तो तुम्हारे sir, 6 से भी 7 Spalding नंबर sign, हो जाएंगे। Spalding sign, Robertson Spalding. sign, ball sign, and वेरी वेरी, यहाँ पे तुम्हारे नंबर 7 से भी ऊपर 8 हो गए, thank you, sir. यहीं पे आप पास होगी। हालांकि अभी तो हमने सिर्फ हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन ही किया है, आपसे कोई डिस्कशन ही नहीं हुई उसकी क्या इन्वेस्टिगेशन करोगी, फिर उसकी मैनेजमेंट क्या करोगी। तो असल तो नंबर आपको वहां मिलने थे, लेकिन आपने स्नैच करके वो नंबर यहीं पे ले लिए, बिकॉज आपने बाकी आपके साथियों के लिए, व्हाई एम आई सेइंग ऑल दिस, आपने उसके पहले पार्ट आपने पूछा कि फीटल मूवमेंट कब से गैर हाजिर थी, एलएमपी को कंफर्म किया, चूंकि मैंने एलएमपी नहीं दिया था आपको, मेसोसाइकिल को कंफर्म किया, नहीं बताया था आपको कि आपको पता होना चाहिए कि वाकई 36 वीक्स पे है कि नहीं, उसके लिए एलएमपी कंफर्म किया, मेसोसाइकिल को कंफर्म किया। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट कि अब तक उसकी एंटीनेटल केयर उसने कहीं करवाई नहीं करवाई, और वो कब उसने बुक किया, और आपने कहा कि उसका अल्ट्रासाउंड वो दो जो है इम्पोर्टेंट वो हुए कि नहीं हुए। फिर आप आगे, वेरी वेरी गुड, मैं आपको मॉडल के तौर पर बाकियों को प्रेजेंट कर रहा हूं। फिर आप आगे कि आईयूडी की कॉजेज क्या हो सकती, आईयूडी का आपने कहा कॉजेज कुड बी इन द मदर, कॉजेज कुड बी इन द फीटस, कॉजेज कुड बी इन द प्लेसेंटा, ये अल्फाज आपने बोले। फिर मदर की 2-3 बीमारियों के आपने नाम ले दिए, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एसएलई, बहुत है, एनी मेडिकल डिजीज इन द मदर, और एनी मेडिकेशन, एक मेडिकेशन का लफ्ज नहीं बोला, वो भी बोल दिया, लेकिन जो बोला बहुत अच्छा बोला। फिर फीटस का आपने कहा कि फैमिली हिस्ट्री है अब नॉर्मलिटी की कि नहीं है, फीटल का अल्ट्रासाउंड आपने पहले ऊपर बोला था 2 दफा हो चुका है कि नहीं हो चुका। अलबत्ता अपने प्लेसेंटा को थोड़ा सा और डायलेट करना चाहिए था कि प्लेसेंटा की लोकेशन क्या है, रीट्रोप्लेसेंटल ब्लीडिंग तो नहीं है, क्लॉट तो नहीं है, क्योंकि एब्रप्शन कंसील जो है वो भी तो पॉसिबल हो सकती है। लेकिन जो भी बोला आपने अच्छा बोला, अल्ट्रासाउंड करेंगे उसमें एपीएच प्रॉम बोला, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट करके जैसा आपने किया है, अब हम आगे चलिए जी, ये फिजिकल एग्जामिनेशन भी कर लिया, उस पर कंफर्म हो गया फीटल हार्ट इज एब्सेंट, कपड़े से और फिर बोलिए। now, sir, I would proceed towards investigations, for certain maternal investigations, to sort out the causes like blood group with RH factor. I would go for complete blood count for HP, TLC for infection and platelets, and other and population profile, in which I would इन्फेक्शन में आजकल क्या बोलते हैं, CRP, CRP. हाँ, कि ये लफ्ज बोलिए, स्पेशली सीआरपी, और एग्जामिनर समझेगा व्हाट यू मीन बाय दैट, ठीक। Then I would go for coagulation profile,
PT, APTT, serum fibrinogen and fibrin degradation products. And then other investigations in the form of HbA1c, RFTs, LFTs, and complete urine examination and viral markers. And वायरल प्रोफाइल भी करवा लीजिए, वो भी उसमें हेपेटाइटिस A, B, C, D, E. And now, as as my patient has as my patient already I have confirmed it from sonologist, so I would now discuss the management with the patient. And I will empathetically counsel the patient regarding the I will counsel the patient empathetically and break the bad news. And I will counsel the patient about the further management that I will there are two options, medical management and expectant management. First of all, as my patient is previous one scar, I will do her सर मुझे हिस्ट्री भी थोड़ी पास्ट ऑब्स्टेट्रिक के उसका सिजेरियन क्यों हुआ था उस पे भी थोड़ा डिग आउट करना चाहिए था, प्रीवियस वन थी तो what was the indication of the previous one scar and एक मिनट, if you missed there, yes sir. अब मैनेजमेंट में आप कह सकते हैं कि मैं सेक्शन की डिटेल पता करना चाहता हूँ. I would like to know that there is a previous one scar. What was the indication of previous cesarean and how was it? And then I will do her Bishop's code to rule out any contraindication. थोड़ा उसकी डिटेल बोलिए. इस सेक्शन इंडिकेशन क्या थी? लफ्ज बोलिए. एनी कॉम्प्लिकेशन. ठीक है सर. ड्यूरिंग द प्रोसीजर और आफ्टर द प्रोसीजर. हाँ, बस ये लफ्ज बोलना है, क्योंकि that decides whether vaginal delivery is possible after previous cesarean section or not. You are telling the examiner that. So any complication. Okay. I will then I will do her Bishop's score and rule out any contraindication for vaginal delivery. And इस केस में क्या contraindication? sir, sir, इस केस में there is she is previous one scar, so it is not our last child born is 5 years back, so it's not an absolute contraindication तो नहीं है, but I would depending upon the previous indication उसकी क्या थी, अगर तो CPD की वजह से था या क्या प्रॉब्लम थी तो वो फिर एक इंडिकेशन हो सकती है हमारी इसमें contraindication हो सकती है. मैं थोड़ा सा आपको कहता कि आप जब भी आफ्टर सेक्शन वजाइन डिलीवरी की बात करेंगे तो सबसे पहले फीटस की बात आपने सिर्फ ये CPD आप बोलेंगे I'll assess lie of the fetus, presenting part and size of the fetus. ठीक है. ये बोलिए, क्योंकि अगर ट्रांसवर्स लाई है वो, यस सर, तो फिर नहीं आप करेंगे कुछ. जी तो इसलिए पहले फीटस पे जोर दीजिए. ठीक है सर. सर I will do her Bishop examination and Bishop score, and I will do assess the size of the fetus, the presentation of the fetus, and the size of the fetus to rule out any contraindication to the vaginal delivery. And I will explain the procedure to the patient, and I will tell her about the expectant and the medical management, and I am थोड़ा सा पहले नहीं कर लेना चाहिए था. आपने बोला था she has got two जी options. सर मैंने बोला था. जी जी सर, वो फिर पेशेंट के अकॉर्डिंग की ये बात वहां पे डायरेक्ट कर देती है कि two options, one is expectant treatment, other one is उसके induction of labor and delivery. मेडिकल मैनेजमेंट. ठीक है सर. एंड डिपेंड then I will do Bishop. बात बोलिए कि if patient leaves to me, तो मैं उसके साथ फिर emphasize करूंगी
कि दोनों इक्वल हैं कोई प्रोग्नोसिस के हिसाब से, शी कैन वेट फॉर फ्यू डेज, 70-80% खुद ही स्पॉन्टेनियस लेबर में चले जाते हैं विद इन 3-4 days. चले जाते हैं. और Yes, sir. or if she is too upset, then I can do induction of labor and delivery. और उससे फिर Yes, sir. अगर इंडक्शन ऑफ लेबर डिलीवरी की बात आ गई है, फिर आप ये सारी बातें बोलेंगे. Then I will go for induction of labor and after the arrangement of blood and written consent of husband. And I will explain the procedure of the induction of labor and the possible complications. कैसे करेंगे आप इंड्यूस? Yes, sir. इंड्यूस कैसे करेंगे? Sir, induce, I will do her bishop score, and depending upon the bishop score, if bishop score is less than, if it is more than 6, so it is favorable for induction, and if it is less than 6, so we can go for cervical ripening before, and then proceed towards. So how will you ripen the cervix? Sir, there is, it could be in the form of anti. We can do mechanical method. Can we use, sir, mechanical method in IUD? वो मतलब आप कहेंगे मैं फिर कमेंट करूंगा उस पे. तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइक ए वेरी गुड स्टूडेंट एज यू आर, तो ये ऐड कीजिए कि अगर बिशप स्कोर फेवरेबल नहीं है, देन माय प्रेफरेंस विल बी टू गो इनटू एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट. ठीक है सर. फिर आपकी चॉइस बेहतर ये होगी कि इंतजार कर लो. ठीक है. और अगर वो राइप है फिर इंडक्शन कर लो. अगर एग्जामिनर कहता है कि नहीं शी इज टू अपसेट, फिर कहो कि मैं फिर राइप नहीं करूंगी. तो बेसिक आज का बेसिक ये गाइडलाइन हो गई कि वी ऑफर द पेशेंट 2 ऑप्शंस. अगर वो कहती है जो आप मर्जी करो, देन आई असेस पहले फीटस की लाइव वाला जो बोला गया आप, and then bishop score. If they are favorable, I'll do induction of labor and deliver. If they are not favorable, my preference will be to wait expectant treatment. अगर expectant treatment करेंगी तो फिर उस waiting time में कोई है special measures? Yes, sir. In waiting time, we will do twice weekly clotting profile. Twice weekly, we will do clotting profile. We're waiting. The 85% going spontaneous labor में चले जाते हैं, and we will do twice weekly the clotting profile of the patient. बच्चा deliver हो गया. Sir, after the baby is delivered, so we will inspect the placenta for any infarct. And we will inspect the cord for any knot, any cord around neck, and then we will inspect the baby for any gross fetal anomaly, and the baby will be handed over to the pediatrician. They will also assess the baby. या थोड़ा सा वो उसके मैसरेशन होगी, जरा उसको डिस्क्राइब कर दीजिए, क्योंकि few days हो गए ना, फ्रेश नहीं होगी आपके. It will be a fresh SB still birth. It will be signs of maceration. ठीक है sir. I would look for whether it is fresh or macerated. Maceration, there would be peeling of skin, and there would be peeling of skin in case of maceration, and bright red. Any gross visible I will look for gross physical anomaly, and then I will inspect knot and placenta. Good. वो हो गया, कर लिया. And if the patient permits, we can go for a top postpartum. Or excellent. आप अगला इम्तिहान मैं अभी कह देता हूँ, you will just walk, inshallah. क्योंकि आप तो you had not come prepared for this discussion, but the way you've done it, beautiful. I wish everybody could do it the way you've done it. You have not missed anything. वो सेक्शन अगर हिस्ट्री वगैरह में मिस किया हमने, तो उसको मैनेजमेंट में लाके फिर डिस्क्राइब कर दिया. We haven't missed anything at all. Thank you, sir. Thank you. आप किसकी ट्रेनिंग हो इस्लामाबाद में?
सर प्रोफेसर फरीसा वकार। अच्छा, मैं उनको नहीं जानता, मेरी तरफ से उनको भी जाके मुबारकबाद दीजिए। जी सर। थैंक यू वेरी मच। चलें, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एनीबडी एल्स? दो केस और हैं। सर एक बात पूछनी थी, बुकिंग कर सकते हैं कौन आईयूडी? सी? डॉक्टर का नाम नहीं आ रहा, सिर्फ डॉक्टर। कौन डॉक्टर है जी आप? नफीसा। डॉक्टर नफीसा। डॉक्टर नफीसा? हाँ जी नफीसा कहाँ से बोल रही हैं आप? सर, रही आसान से। ओ माशाल्लाह। आप दो चॉइसेस हैं आपके पास। एक तो पहला केस था कि मैं फिर हिस्ट्री दोहरा देता हूँ। एज 25, ग्रेविडा 3, पैरा 2। अब अर्ली प्रेगनेंसी है, 5 महीने का एमेनोरिया है, और अल्ट्रासाउंड पे फीटल हार्ट नहीं मिल रहा, और प्रीवियस 2 IUFDs हैं। पैरा 2 है, दोनों स्टिल बर्थ थी। एक तो केस ये था। दूसरा केस है एज 38, मैरिड फॉर 10 years, IVF की प्रेगनेंसी है, प्राइमरी ग्रेविडा है, और शुरू से IUGR चला आ रहा था। अब 32 वीक्स पे फीटल हार्ट गायब हो गया। क्या करेंगी? कौन सा केस? एक और चॉइस। आप नहीं बोल रही तो फिर मैं खुद ही चूज कर लेता हूँ। नो नो नफीसा, सर, रिपीट कर दें सर, वॉइस नहीं पता चले। रिपीट जी कर दें सर, रिपीट कर दें हाँ, सिनेरियो। रिपीट करें। इसकी यस 2 सर, दफा तो रिपीट हो चुकी है, तीसरी दफा ले। सॉरी सर। पहला केस है एज 25, ग्रेविडा 3, पैरा 2, has presented to you at 20 weeks of amenorrhea and we cannot find fetal heart. ओके इससे सर। पहले पैरा 2 जो है, दोनों स्टिल बर्थ थी। ओके एक तो ये है। दूसरा सर, केस है, यही प्रेजेंट करती हूँ, यही प्रेजेंट करती हूँ। यही कर लेते हैं। चले जी। ओके। आपका नाम लिखूं, नफीसा जी, फरमा दीजिए। After introduction, I will ask brief demographic history of introduction of my patient by asking name, age, married for, parity, and previous childbirth and mode of birth, and ask about patient education status. After that, I will ask about patient LMP with the regular menstrual cycle or not, and any history of ovulation induction, and ask about either UPT done or not, and an dating scan done, and an MD scan done, and ask the patient regarding any history of excessive nausea, vomiting, flu, fever, rash, abdominal, any abnormal discharge, bleeding or leaking, and any comorbidities like diabetes mellitus, hypertension, TB, asthma. And after that, I will ask about the previous childbirth, their mode of delivery, time of delivery, and cause of death, if patient is known, any anomalies in that fetus, and and what at that time any complications happened, and anything the doctor told to the patient, and it is any history of PPH in that pregnancy, blood transfusion, and history of anemia, diabetes in that pregnancies. After that, I will ask about the surgical history, previous any cesarean section or any other surgery, and any family history of diabetes mellitus, hypertension, TB, asthma, ischemic heart disease, and a patient history of smoking and drug allergy. After that, I will go for the general physical examination of my patient. I will check the BMI by height and weight scale and BP pulse. थोड़ा ऐसा आपने जो पूछा है मैं दोहरा देता हूँ।
ताकि आपको अंदाजा हो कि खुद ही अंदाजा होगा कि व्हाट हैव यू मिस्ड। आपने बोला है कि उसका एलएमपी पूछेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल पूछेंगे, उसका अल्ट्रासाउंड कब हुआ, उसकी डिटेल पूछेंगे, उसको एक्सेसिव नोजिया वॉमिटिंग तो नहीं, एपीएच तो नहीं हुआ, और मेडिकल डिजीज माँ की 2-4 नाम दिए आपने। और ये पूछने के बाद आपने कहा पास्ट ऑफ स्टैटिकल हिस्ट्री पूछेंगे, ये लफ्ज बोला आपने, कुछ डिटेल नहीं बोली। और पीपीएच हुआ, उसको अनीमिया तो नहीं है, डायबिटीज तो नहीं है, डायबिटीज पहला हिस्सा था लेकिन फिर आ गई। और फिर आपने सेक्शन की डिटेल पूछी, फिर आपने कहा स्मोकर है कि नहीं है, ये बोला आपने। थोड़ा सा आप ऑर्गेनाइज नहीं है उस तरह से कि मैंने आपको दी है हिस्ट्री के 2 कंसेक्टिव IUFD हो चुकी हैं उसकी, और तीसरी 5वें महीने में फीटल गायब हो गया। तो इमीडिएटली आपकी सोच किस तरफ जाती है? सोच इस तरफ जाती है कि जैसे पहले बोला गया, किंजा ने बोला कि cause could be in the mother, cause could be in the fetus, cause could be in the placenta. I use D की ये 3 उन्होंने ग्रुप बनाए थे। Okay, sir. अब 2 कंसेक्टिव IUDs, अब भी तीसरा भी हो गया, तो मदर की आपने जनरल सा बोल दिया थोड़ा सा, लेकिन जो आपको ज्यादा फिक्रमंदी होती है, सोच होती है कि अर्ली ये सेकंड ट्राइमेस्टर में ही उसका IUD हो गया है, कि मदर की कौन सी बीमारियां हैं जो स्पेशली आपको वरी करती हैं, उनके 2-4 के नाम बोलिए। कि यहाँ पे डायबिटीज के साथ लफ्ज बोलिए अनकंट्रोल्ड डायबिटीज इस स्टेज पे, और अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, ये 2। लेकिन इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इम्यूनोलॉजिकल डिजीज, SLE या एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडीज हम ढूंढते हैं, और कोई मतलब जो इतनी अर्ली स्टेज पे और बार बार कॉज करती हैं और उनको कंट्रोल भी नहीं हम कर सकते, तो वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, अनकंट्रोल्ड SLE, ये इस तरह से लफ्ज बोलिए ताकि आपको पता चल जाएगा एग्जामिनर को ये कंसर्न के रिकरेंट है। 3 प्रेगनेंसी, तीनों में हार्ट बीट गायब होगी, स्टिल बर्थ भी है, हार्ट बीट भी गायब है। तो इस तरह ये लफ्ज बोलिए अनकंट्रोल्ड, क्योंकि अगर कंट्रोल डायबिटीज है, कंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, तो अनलाइकली है कि 20 वीक्स पे उसका फीटल गायब हो जाएगा। ये मदर के बाद फिर हम आते हैं फीटस। अगर फीटस में कोई वजह है तो मस्ट बी ग्रॉस एनोमलीज, इस पे एम्फेसाइज कीजिए कि क्या अल्ट्रासाउंड पे फीटस की एनोमली को डिटेक्ट हुई कि नहीं हुई। और फिर वो प्लेसेंटा का आ गया, ब्लीडिंग वगैरह जो आपने बोला। लेकिन इसके साथ तीसरी इंपॉर्टेंट बात आपने नहीं कही, वो है फैमिली हिस्ट्री। अगर उसको कोई क्रोमोसोमल अनोमली है, उसकी फैमिली में है, तो उससे पता चलता है। फैमिली हिस्ट्री यहाँ पे बोलना बड़ा लाजम था कि उसकी फैमिली में कोई अनोमलीज की हिस्ट्री है इस तरह से, या इस तरह स्टिल बर्थ की हिस्ट्री है, या फिर कोई मेडिकेशन ले रही है, वो भी हो सकता है। तो इस तरह से ये 4-5 बातें इनको इस पेशेंट में वो ज्यादा एम्फेसिस होना चाहिए था आपकी तरफ से, जितना आपने कहा है। Okay, sir. कहा तो यू गेट माय पॉइंट? Yes, sir. हाँ, तो चूंकि 3 प्रेगनेंसी, तीनों में हार्ट बीट गायब है, तो हमें ढूंढनी है। और तीसरी प्रेगनेंसी में तो 20 वीक्स पे ही गायब हो गया। वो देयर इज सम रिकरेंट कॉज। रिकरेंट कॉज माँ की बीमारी कब होगी? जब वो अनकंट्रोल्ड है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, ठीक है, डायबिटीज कंट्रोल है, ठीक है, और SLE है, पर्टसोन है, कुछ है जो कंट्रोल्ड है, तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो
तो चूंकि आपने नोट किया होगा ऐसे पेशेंट को आजकल क्लेक्सिन भी देते हैं, एंटीकोएगुलेंट भी देते हैं, हार्मोन भी देते हैं, वगैरह। जब मैनेजमेंट की बात आती है तो फिर बहुत कुछ ऐसा दिया जाता है। तो Yes. उसकी तैयारी करने के लिए ये अल्फाज बड़े जरूरी थे आपके। Okay, sir. चले, फिर इसी तरह के फीचर्स जो पिछले दो थे उनमें विजिबली कोई ग्रॉस एनोमली थी। यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल कीजिए जो मैंने किंजा से भी कहा कि उनका पोस्टमार्टम हुआ। आपका Okay, sir. हमारे मुल्क में नहीं होता, लेकिन आपका कहना जरूरी है क्योंकि कोई Okay. इंटरनल एनोमली हो सकती है, डेवलपमेंटल Okay. डिफेक्ट हो सकता है उसको, बच्चों को। Okay. ए, Okay, sir. मैं रिपीट करती हूँ। एक मिनट, फिर जब आपकी इस लिस्ट में नहीं होगा, मैं पहले प्रीएम्प्ट करके कहता हूँ, फिर इस पेशेंट में आपने ये कहना है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड 20 वीक्स में उसका कोई नॉट ओनली एनॉमली स्कैन, उसका लफ्ज बोलिए NIPT हुआ, नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्टिंग, या उसका एमनियोसेंटेसिस हुआ, या उसका CVS हुआ। ये अल्फाज बोले होते तो फिर आपको मैं उसी तरह ही कहता जिस तरह डॉक्टर किंजा से कहा कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आपका ध्यान इस पेशेंट में इस बात पे होना चाहिए था कि इसके तीसरी प्रेगनेंसी है, तीनों में फीटल गायब है। तो रिकरेंट कॉजेज जो है इन मदर, इन फीटस, इन प्लेसेंटा अगर कोई है तो ये आपने ढूंढनी है। लफ्ज रिकरेंट का लफ्ज है। रिकरेंट कब होगा? जब अनकंट्रोल्ड होगी डिजीजेस, या कोई क्रोमोसोमल एनोमली होगी, या इस तरह की के जिसका हम कुछ कर नहीं सकते। समझ गए? फिर Yes, sir. आई एम ग्लैड आपने कोई वो रैश ये वो बातें नहीं की, क्योंकि रैश वगैरह तो वन टाइम कॉज करेगा ना IUD। बुखार, इन्फेक्शन, वो प्रैक्टिकली वन टाइम करेंगे। वो आपने नहीं कहे, वो आई एम हैप्पी अबाउट इट, आई एम हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि हमने वो कॉजेज पे ज्यादा एम्फेसिस देना है जो इनएविटेबल है, रिकरेंट है और अनकंट्रोल्ड। इस पेशेंट में ये है, और इनके डायग्नोसिस में ये सारी बातें कहनी है हमने कि अगर ये आपके पास अर्ली प्रेगनेंसी में आती, प्रीवियस टू IUDs हैं, स्टिल बर्थ हैं, तो आप उसके अर्ली प्रेगनेंसी में क्या क्या टेस्ट करवाती, मेडिकल डिजीजेस के कौन सी अनकंट्रोल्ड है उसकी, या मेडिकेशन क्या वो दवाई ले रही जिसकी वजह से ये हो सकता है, या फिर आप कहती हैं कि जी बहुत अर्ली आती तो मैं उसका CVS करती, मैं उसका इम्यूनोसेंटेसिस करती, मैं उसका NIPT करती, या इस रूट पे आप चलती तो फिर आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। समझिए? सो ये दूसरे केस में हमने ये सीखा कि अगर रिकरेंट हो IUD, फीटल डिसअपियर हो जाता है, तो आपने वो रिकरेंट की कॉजेज को हाईलाइट करना है और उसकी इन्वेस्टिगेशन को हाईलाइट करना। ठीक हो गया Okay, sir. डॉक्टर नफीसा? जी सर। हम ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा तभी तो मैं हिस्ट्री फर्क फर्क बताता हूँ कि आप पहली हिस्ट्री में मैंने उनसे नहीं कहा कि ये इस तरह से पूछो। इस हिस्ट्री में चूंकि ये रिकरेंट है, इसलिए आपने रिकरेंस की कॉजेज जो हैं वो एग्जामिनर को हाईलाइट करके बतानी है, और उसी की इन्वेस्टिगेशन, जैसे ये मैंने 3 4 5 नाम लिए। फिर उसके बाद तो ये 20 वीक्स पे है, कोई खास उसकी डिफिकल्टी नहीं है आपको मैनेजमेंट में। चले, अब रह गई तीसरी हिस्ट्री। एनीबडी?
कोई तो वॉलंटियर हो। आप इतनी सारी लड़कियां बैठी हुई हैं, क्या आप चुप कर जाती हैं? नहीं, डॉक्टर केंजा, आर यू स्टिल देयर? जी सर। चलें फिर आपसे करता हूँ तीसरा, ताकि होपफुली सीधा सीधा हो जाए। चलें, पेशेंट एज 38, मैरिड फॉर 10 years, इनफर्टिलिटी थी, उसका आईवीएफ हुआ और उससे प्रेगनेंसी हो गई, शी इज प्राइमरी ग्रेविडा, लेकिन थ्रू आउट उसका IUGR चल रहा था। अब 32 वीक्स पे अचानक फीटल गायब भी हो गई। बोलिए। Sir, after introducing and greeting myself, after greeting the patient and introducing myself to the patient, I would like to know some extra information, as my patient is 38 years old and she has conceived it by IVF, and she's a known case of IUGR. So I would like to get some extra information to rule out the what would be the cause of IUGR. So I would like to know that since when she has been on the surveillance for IUGR, and whether she has any history of diabetes or uncontrolled hypertension in this वो मेडिकल pregnancy. डिजीज का लफ्ज बोल दीजिए ना। Any मदर history of medical disorders in this pregnancy or to the mother, and any history of what about the fetal anomaly scan? It was any to rule out any anomalies or any in the fetus, any cause in the cause in the fetus, like any anomaly, and any history of fever, flu, rash, to rule out any infectious causes in the mother in this case, and to know out the cause of IUGR. And as my patient is on 32 weeks of gestation by dates, so I would like to, after inquiring about this history, to know about the cause of IUGR, I would like to proceed towards the examination, and I would like to examine. ना ना ना, ये आपने उतना अच्छा नहीं किया। तो मतलब मैं फौरन जान गया एज एग्जामिनर कि आप इस हिस्ट्री का जो जिस तरह पॉइंट कर रही है वो नहीं समझी। नहीं, अगर ये पेशेंट है जिसका IVF हुआ है, ऑब्वियसली वेरी प्रेशियस प्रेगनेंसी, आपका ये कहना ठीक है कि वही बात माँ में मेडिकल डिजीज, इसमें अनकंट्रोल तो नहीं होगी ना, क्योंकि प्रेशियस प्रेगनेंसी है, लेकिन फिर भी कि एनी मेडिकल डिजीज विच इज बीइंग ट्रीटेड तो वो जरूर ट्रीटमेंट हो रहा हो। और फिर जब फीटस पे आते हैं हम, यहाँ पे आपको कहना था, जो नहीं कहा आपने, आपको कहना था कि ये इसका चूंकि IVF हुआ है, मैं पूछना चाहूंगी ये IVF हुआ, ये ICSI हुआ और ये PGT हुआ? मुझे अंदाजा हो गया आपको ये नहीं था, या आपने कहा नहीं। जी जी। तो अगर आप कहते थे लफ्ज के ये PGT हुआ कि नहीं हुआ, तो इसका मतलब आप कह रही हैं कि बच्चे का क्रोमोसोम स्टडी एम्ब्रियो डालने से पहले हो गया। जी सर। फिर उसको क्रोमोसोमल एनोमली नहीं होगी। अगर इसका PGT नहीं हुआ, सिर्फ ICSI हुआ या IVF हुआ, इसका मतलब इसका PGT क्रोमोसोमल एनालिसिस एम्ब्रियो का नहीं हुआ।
So फिर gross anomaly could be there because of chromosomal anomaly. ये है इसमें कैच पॉइंट इस पेशेंट की हिस्ट्री में. जी सर. थोड़ा सा मैंने मुश्किल कर दिया ये केस. जी सर. तो लेकिन आज का मैसेज आप लोगों को ये है कि 1 मिनट में ये चलिए जूली मैं क्लास ले रहा हूँ. तो आज का मैसेज ये है कि जिस पेशेंट का आईवीएफ हुआ हो, आपने उसका पूछना है कि आईवीएफ कैसे हुआ था. आईवीएफ हुआ था इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इक्सी हुआ था, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन हुआ था, या पीजीटी उसका हुआ. प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग ये टेक्निक आजकल अवेलेबल है. अगर उसकी जेनेटिक टेस्टिंग हो गई, इसका मतलब उसको क्रोमोसोमल अनोमली कोई नहीं है उस बच्चे को. और अगर नहीं है, ये पीजीटी नहीं हुआ तो फिर इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि वो बच्चा जो है उसको कोई क्रोमोसोमल अनोमली है. And that is the cause of death. That was the cause of IUGR. Fetal cause थी उसमें. जी सर. और सर Fetal मैटरनल cause. एज भी 38 है जी. उसमें. मैटरनल एज भी 38 है. अच्छा ठीक, माशाल्लाह. क्या नाम है आपका? सर किंजा. आप किधर ही बोल रही हो? जी वेरी जी गुड. सर. You're with it. You're with it. I'm so pleased to meet you. तो इस वजह से मैंने लिख के 38 उसको सर्कल किया हुआ है मेरी अपनी कॉपी में, ताकि आपको अंदाजा होना चाहिए कि 35 के बाद 37 के बाद तो बिल्कुल ही ये नॉर्मली का रेट बहुत हाई हो जाता है, बढ़ जाता है. तो इसलिए आपकी डिस्कशन बेसिकली इधर जानी चाहिए. आपका अगर जी फोकस सर. इधर कि जी आई वुड लाइक टू फाइंड आउट डिटेल्स ऑफ हर आईवीएफ ट्रीटमेंट. क्या डिटेल जानना चाहेंगे? वो ये कि उसकी पीजीटी हुई कि नहीं हुई. थी पास. आपने लफ्ज पीजीटी बोला तो थी पास, और कुछ डिस्कशन होनी ही नहीं थी. तो क्योंकि पीजीटी का मतलब है क्रोमोसोमल अनोमली को एक्सक्लूड कर दिया गया है, और बच्चे में कोई डेवलपमेंट डिफेक्ट को लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होगा, माइनर होगा. कोई 5वीं 6ठी उंगली बन गई, कोई छोटा मोटा और हो गया, लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होगा क्योंकि उसके क्रोमोसोम स्टडी हो चुकी है. फिर उसके बाद तो फिर जी. दूसरा पार्ट डिस्कशन का जो मैं लाने वाला था, टाइम होता हमारे पास. फिर जब आईयूजीआर था उसको, फिर उस वक्त आप क्या करती? उस वक्त उसकी मैनेजमेंट क्या होती ताकि ये आईयूडी ना हो जाती? प्रेशस प्रेगनेंसी भी है, तो वो आईयूजीआर को आप कैसे मैनेज करती? उसके क्या क्या टेस्ट करती? कैसे फीटल मॉनिटरिंग करती? और दाखिल कब कर लेती? डेली क्या सीटीजी होती? फिर बायोफिजिकल प्रोफाइल होता? फिर ये होता वो होता? जो फीटल मॉनिटरिंग है वो आईयूजीआर की डिस्क्रिप्शन आपसे मैं मांगता. फिर लास्ट आता कि इसको डिलीवर कैसे करेंगे, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके. सो आज के ये टॉपिक जब मैंने सिलेक्ट किया, मैंने कहा यार ये की कुछ भी तो नहीं है इसमें, अगर आईयूडी होगी है तो फिर क्या करना है. लेकिन ये 3 हिस्ट्री जब मैंने बनाई तो मुझे अंदाजा हुआ कि तीनों की मैनेजमेंट फर्क है, तीनों की प्रेजेंटेशन फर्क है, और तीनों की डिस्कशन फर्क होगी. तो इसलिए सिर्फ आईयूडी या आईयूएफडी लेके वो उसकी कॉजेस मदर फीटस प्लेसेंटा करके आप फर्क नहीं हो जाते. हमने पहले केस में जो उसको किया कि जी पहले सजेरियन सेक्शन था,
अब आईयूडी हो गई है, उसका क्या करेंगे, ये डिस्कस किया। दूसरे केस में हमने डिस्कस किया कि प्रीवियस टू कंसेक्टिव स्टिल बर्थ थी, अब फिर तीसरा हो गया, उसकी क्या होनी चाहिए थी। तीसरे केस में हमने किया, मैंने आईवीएफ डाल दिया कि आईवीएफ हुआ है और फिर उसकी वेट लॉस गायब हो गया है एट 32। वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि तो इतनी महंगी प्रेशियस प्रेगनेंसी होती है, इसमें तो एवरीबडी गेट्स अपसेट, पेशेंट, उसका डॉक्टर्स, एवरीबडी गेट्स अपसेट। क्योंकि अगर जब आयु दिया तो उसको उस वक्त 30 वीक्स पे 31 वीक्स पे डिलीवर कर लिया जाता। आजकल तो हर अस्पताल में इंटेंसिव न्यूनेटल केयर है, तो बच्चा बच जाता, 1 kg से ऊपर होता तो बच जाता। लेकिन यहाँ पे फीटल हार्ट गायब हो गया, तो पेशेंट गेट्स वेरी अपसेट। तो इसलिए इसकी मैनेजमेंट फर्क थी, और हमें एग्जामिनेशन में ये आईवीएफ का जो एस्पेक्ट है उसकी थोड़ी डिटेल डिस्कस करने की जरूरत है। चले, वेरी गुड। 5 मिनट हमारे पास है, कोई सवाल आप पूछना चाहे तो पूछिए। सर स्वीपनिंग कर सकते हैं आईयूडी में? क्या स्वीपनिंग क्या करना है? मैं समझा नहीं डॉक्टर केंद्र क्या कहा। चले, और कुछ? अगर कुछ नहीं है तो फिर थैंक यू। आज 3-4 मिनट पहले क्लास खत्म हो गई। हाँ सच, अगले वेडनेसडे को मैं जा रहा हूँ इस्लामाबाद, मेरे वीजे का कोई इंटरव्यू है, तो आई एम सॉरी आई एम मिसिंग वेडनेसडेज, लेकिन फिर इंशाल्लाह रेगुलरली होगी क्लास। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।